Hello everyone. Today we are going to do the next part, the second part of Physics Chapter 2, Units and Measurement. But before going to the next part, we have to solve some doubts from the previous exercise, that is practice problem 1. The first doubt was in question number 6, where the question is a huge circular container is observed from two diametrically opposite positions, x and y, on the earth. Now see, in the solved example, these diametrically opposite positions, uh, I took it as half circumference. But here, I took the length of the diametrically opposite positions as length directly. Okay, so this is the length. The angle subtended at that huge container is 1 degree, 26 seconds and 26 minutes and 4 seconds. I converted this into degrees by converting minutes into degrees and seconds into degrees. So this became 1.431 degrees, and then I converted this into radians. So to convert from degrees to radians, this is the symbol of radians. Okay, to convert from degrees to radians, you have to multiply by pi by 180. And to convert from radians to degrees, you have to multiply by 180 by pi. Okay, so I multiplied it by pi by 180 and simplified it. I got it at 0.025 radians. So theta is equal to L by R is our formula which we are going to use. So we know L, we know theta, we have to find R. So I just put the values in the formula and got the correct answer, which matched with the answer over here. So this is the method. You can note it down by pausing the video. Okay, the next doubt is question number 10, and many people are getting the same answer as I'm getting, and this is apparently not the correct answer. Okay, so a pole standing on a level ground, shadow of the pole is 30 meter longer when the sun's altitude is 45 degree than when it was 60 degree. Calculate the height of the pole. So I took the values as shown in the figure, and then I calculated, I applied your trigonometric relationships, and then I found the value of x to be 40.98, and root 3x, that is the height of the tower, came out to be 71 meter approximately. That is what most of the people's answer is. So don't worry about it. The answer which is given over here is absolutely wrong because our method is correct. I cross-checked it, and now we are ready to go to the next part of the chapter, which is accuracy, precision of instruments and errors in measurement. This is a long part, so it's possible that I will uh, divide it into smaller videos and post it on YouTube. And in the end, we'll have a practice problem exercise, right? So let's begin with the topic accuracy, precision of instruments and errors in measurement. See, physics is basically a science of measurement, and in case of such experimental science, measurement is very important. And we know that measurement techniques, they may be direct or indirect of certain physical quantities, right? They can be using some direct instruments, or they can be using some methods which are indirect without use of any instrument. But in the process of measurement, some uncertainty is always associated with the result which we are getting from measuring instruments or the methods of measurement. This uncertainty in the result of measurement is called error. So that is the first point. You should note it down. I hope you are taking notes because this is a lot of theory which we are going to do here, and taking notes will be important. So the first point you should note is uncertainty in the result of measurement is called error. Many times some physical quantity depends on some other physical quantities, on some other measured physical quantities, and so the error is propagated in the final result of calculations. So suppose you need to find area. Now if you're making error in measuring length, then your area will also be having some error, right? If you want to find volume and your uh, basic length and radius or whatever you know, fundamental quantities are wrong, then volume will also be wrong. So error is propagated means error is carry forward in the final result of calculations. So
we need to be extra careful. Now we are basically faced with two very important terms over here. The first term is accuracy and the second term is precision. These two terms are very oftenly used, but we should be very much aware about the difference between these two. See, if the measured result is close, if the measured result is close to the true value of the physical quantity, then it is said to be accurate, more accurate. ठीक है, इसमें एक चीज नोट करो, ये लोगों ने हाईलाइट किया है एक चीज को जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू. ठीक है, तो अगर तुम्हारी मेजर्ड रिजल्ट की वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी से क्लोज है, नजदीक है, तो हम लोग तुम्हारे जो रीडिंग है उसको बोलेंगे कि ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग. ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल रीडिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से नजदीक है तो तुम्हारा रीडिंग एक्यूरेट है. सो एक्यूरेसी क्या है? व्हाट इज एक्यूरेसी? फिर से ये नोट कर लो, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. इसको नोट कर लो. एक्यूरेसी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी नजदीक है उसको उस रीडिंग या उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी बोलते हैं. ठीक है, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. हाउएवर प्रिसिजन इज टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. इसको भी नोट कर लो. प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन इज टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. द प्रिसिजन जो होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि वो कितने लिमिट या रेजोल्यूशन या कितने लीस्ट काउंट तक तुम एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो वो बताता है. जैसे वर्नियर कैलिपर. अब वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 0.1 mm की एक्यूरेसी तक लेंथ को मेजर करता है. और स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 0.01 mm तक की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करता है. तो दोनों की अपनी अपनी एक्यूरेसी है, लेकिन दोनों में से प्रिसाइज ज्यादा कौन है? जिसका लीस्ट काउंट कम है, जिसका रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है. कौन है वो? स्क्रू गेज. तो स्क्रू गेज दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज है. दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जब तुम यूज करोगे तो तुम सेम एक्यूरेसी का यूज कर सकते हो, तुम सेम एक्यूरेसी दिखा सकते हो. You can exhibit the same accuracy while using both the instruments. But which is more precise instrument? So precision is something which is solely dependent on the measuring instrument. ये बात एक नोट कर लो. Precision solely depends on the measuring इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जितना कम उतना प्रिसिजन ज्यादा होगा. याद रखना, लीस्ट काउंट जितना कम उतना प्रिसिजन ज्यादा. किसका लीस्ट काउंट कम है? स्क्रू गेज का या वर्नियर कैलिपर का? ऑफ कोर्स स्क्रू गेज का. तो स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है, स्क्रू गेज का प्रिसिजन ज्यादा है. ठीक है, अब ये तो हो गई प्रिसिजन की बात. अब करते हैं एक्यूरेसी की बात. ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट है या एक्यूरेसी इन मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन पे. एक्सटर्नल फैक्टर में हम भी आ गए जो मेजरमेंट लेता है. ठीक है, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स including the person taking the measurement. एक्यूरेसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है उस पे भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है. प्रिसीजन उस पे डिपेंड नहीं करता है. प्रिसीजन सोलली डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे. तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम दोनों वर्ड यूज करते हैं, बट ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस तुम्हें समझ गया होगा. ठीक है, सो स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर से, ये हमें समझ में आ गया. ठीक है, क्योंकि स्क्रू गेज का
लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम है, इसलिए उसका प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर से ज्यादा है। सो ऑल्दो स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है मेजरमेंट लेने के लिए, बट मेजरमेंट जब वर्नियर कैलिपर से हम लेंगे और उसमें अगर ज्यादा ध्यान रखेंगे, इफ विल बी मोर केयरफुल, तो हो सकता है कि वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट हो स्क्रू गेज से। तो एक केयरलेस स्टूडेंट स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेता है और एक केयरफुल स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेता है, तो किसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा? ऑफ कोर्स जो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ले रहा है उसका ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो ज्यादा केयरफुल था। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वहां पे केयरफुल स्टूडेंट के कंट्रोल में है। Careful student is controlling the external factors, and that's why the accuracy of careful students, even if his instrument may not be that precise, ठीक है, तो भी उसके जो उसका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है, राइट, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फैक्टर्स वाइल मेकिंग द मेजरमेंट। इसका एक एग्जांपल दिया है वो लोग ने। एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ट्रू वैल्यू 4.589 mm, जिसकी ट्रू लेंथ या ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.589 mm, ठीक है। अभी इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया जिसका रेजोल्यूशन या लीस्ट काउंट है 0.1 mm, ठीक है। फिर उसको एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अच्छा, उससे उससे पहले उसका मेजरमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो जब उसको एक रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 mm वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इसका मेजरमेंट आया 4.4 mm। याद रखना ट्रू वैल्यू है 4.589। अच्छा, फिर से when the same quantity is measured by another instrument of resolution 0.01 mm, मतलब जिसका जो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर किया, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी आई? 4.23 mm। याद रखना ट्रू वैल्यू 4.589 है। अब देखो फर्स्ट मेजरमेंट कितना आया? 4.4 mm, और ये एक्चुअल वैल्यू है 4.589। फिर ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किया उससे कितना मेजरमेंट आया? 4.23 mm। अब मुझे बताओ 4.4 mm और 4.23 mm में से 4.589 mm में से नजदीक कौन है? ठीक है, 4.589 से नजदीक है 4.4 mm। तो कम प्रिसाइज कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट लिया गया वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा नजदीक है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट कौन है इसमें? मोर एक्यूरेट है 4.4 mm। दिस इज मोर एक्यूरेट, even though this is measured with more precise instrument, the more accurate measurement is given by the first experiment, the first value, ठीक है, the first measurement। तो हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता कि पहला रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिसीजन उसका कम है, लेस प्रिसाइज है, लेकिन सेकंड मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। हो सकता है एक ही मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट और कम प्रिसाइज, या ज्यादा प्रिसाइज एंड कम एक्यूरेट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स? measuring instrument which decides the precision of a measurement, and external factors which decides the accuracy of the measurement। अभी समझ में आया accuracy और precision के बीच में क्या फर्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स को हम लोग ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं यूज कर सकते, समझ के बोलना पड़ेगा जब भी हम बोलेंगे। इसलिए थियरी फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारा जो कोई भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा थियरी स्ट्रांग नहीं है तो तुम वहां भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। बिकॉज तुम्हें अगर थियरी ठीक से नहीं पढ़ी है तुमने, और तुम्हें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, तो तुम ऐसे जो कुछ ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे अगर तुम्हारे सामने, तो उसमें तुम मार खा जाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज टू वर्ड्स इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है। ये तुम्हें 2 साल तक याद रखनी है सारी इंफॉर्मेशन। अभी अच्छी बात यह है कि सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है, तो तुम वापस देख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेक्चर होते तो ये एक ही बार बोल देता मैं क्लासरूम में, और फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, फिर तुम्हारे मेमोरी से भी वो चला जाता। अभी तो तुम्हें ऐसा है कि कोई
चैप्टर भूल चुके हो तो तुम वापस उसका वीडियोस देख सकते हो। तो ये एक फायदा है हमारे पास, ठीक है। जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, ये मैं भी प्रॉमिस कर सकता हूँ अभी, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इवन दो वी डोंट हैव एनी फिजिकल क्लासरूम, वी हैव दिस यू नो यू कैन से बैकअप दैट कोई भी लेक्चर प्रॉपरली तुम्हें एक तो सिखाया जाएगा टाइम लेके, प्लस उसका बैकअप भी रहेगा, एक रिकॉर्ड भी रहेगा जहाँ पे वी कैन रीविजिट द लेक्चर एंड हमारे जो डाउट्स या फिर कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हुए थे वो वापस उसको समझ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन एक्यूरेसी पर्सन परफॉर्मिंग द मेजरमेंट और एक्सटर्नल सेवरल अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट एरर इज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेजरमेंट। एरर तो होगी ही हमेशा, प्रिसीजन कम होने की वजह से भी एरर हो सकती है, एक्यूरेसी कम होने की वजह से भी एरर हो सकती है। तो एरर्स को हम लोग को अभी समझना है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिस्टमैटिक एरर्स को। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर्स ऑलवेज टेंड टू डेविएट द रिजल्ट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब सिस्टमैटिक एरर या तो तुम्हारे रिजल्ट को पॉजिटिव, मतलब यू कैन से मोर देन द ट्रू वैल्यू, या फिर नेगेटिव मतलब लेस देन द ट्रू वैल्यू के डायरेक्शन में डेविएट करने की कोशिश करती है। इन अदर वर्ड्स, मेजर्ड रिजल्ट विल बी ग्रेटर और लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। सिस्टमैटिक एरर्स में बी जनरेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ सोर्सेज एंड सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से होती है, इसको नोट कर लेना। फॉल्टी डिजाइन की वजह से हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा मीटर स्केल है, मीटर स्केल पे अलग अलग डिवीजन देखते हो तुम, ठीक है। अगर ये तुम्हारा स्केल है, स्केल पे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, ऐसे डिविजन्स होते हैं। ये डिविजन्स के बीच में जो गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ये डिविजन्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड डिविजन्स होने चाहिए, उसी को बोलते हैं करेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैलिब्रेशन में एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर क्या होता है? तो जीरो एरर तुमने देखा होगा, सीबीएसई वाले तो नहीं जानते अभी इसको, बट आईसीएसई वाले इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो जीरोज है वर्नियर स्केल और मेन स्केल के, वो कभी कभी कोइंसाइड नहीं करते और इसकी वजह से जीरो एरर होती है। तो सीबीएसई वाले बच्चे प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस, हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो दूंगा जिसमें जीरो एरर को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। आईसीएसई वाले बच्चे भी अगर जीरो एरर भूल गए हैं, मैं उनको फिर से वो वीडियोस दूंगा जहाँ पे मैंने जीरो एरर को अच्छे से समझाया है, एंड यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो, और जीरो एरर तुम्हें एब्सोल्युटली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट याद रखो इंस्ट्रूमेंटल एरर तीन तरीके के हो सकते हैं: फॉल्टी डिजाइन, कैलिब्रेशन एंड जीरो एरर। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, याद रखना। सिंपलेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज 1 मीटर स्केल हुज एंड्स आर वोर्न ऑफ। मीटर स्केल के एंड ऐसे घिस गए तो हमेशा इट विल रीड लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले सकते हैं, बैरोमीटर है, उसका स्केल थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, तो वो हमेशा 74 सेंटीमीटर रीड करता है, जबकि एक्चुअल हाइट 76 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये बैरोमीटर जब मैं यूज करूंगा तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो आ, आ, वो 2 सेंटीमीटर कम ही दिखाएगा, एक्चुअल रीडिंग 2 सेंटीमीटर कम दिखाएगा, ये याद रखना है तुम्हें। ऐसे कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हो तब, ठीक है। फॉल्टी स्केल तुम यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ चीजें, कुछ कैलिब्रेशन ऐसे मिट चुके हैं, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5.4 है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली जीरो मार्क, जब वर्नियर स्केल का कोइंसाइड नहीं करता है जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल के साथ, तो शिफ्ट हो जाएगा रीडिंग, उसमें जीरो एरर आएगा। स्क्रू गेज में भी जीरो एरर होता है, ये मैं तुम्हें डेफिनेटली वीडियो एक एक्स्ट्रा देके मैं समझाऊंगा इसको। तो सिस्टमैटिक एरर को अगर मिनिमाइज करना है
तो इंस्ट्रूमेंट को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो तुम्हें इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर उसको तुम्हें मिनिमाइज करना है या इरेडिकेट करना है, रिमूव करना है, तो यू शुड मिनिमाइज द जीरो करेक्शन एंड यू शुड इम्प्रूव द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर मीटर स्केल की बात करें और उसका वोन ऑफ हो गया तो डेफिनेटली तुम्हें उसको नए मीटर स्केल से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास वर्नियर कैलिपर है और उसमें जीरो एरर है तो उसको अकाउंट करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ये कौन डिसाइड करता है? एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वो डिसाइड करता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट डिसाइड्स द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अगर प्रॉपर प्रोसीजर से मैच नहीं करता, जो टेक्स्ट बुक या फिर मैन्युअल है तुम्हारा लेबोरेटरी मैन्युअल, उसमें प्रोसीजर दी जाती है कि पहले आपको ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, सारे स्टेप्स दिए जाते हैं। इफ यू डोंट फॉलो दो स्टेप्स देन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस है। एंड दीज एक्सटर्नल फिजिकल condition they affect your experiment. Your experiment will be affected by these external physical conditions, and these factors may affect the result of experiment systematically. For example, we want to measure the speed of sound. Speed of sound अगर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट से मेजर करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है। मतलब रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो अगर मैं ये ध्यान में रखूंगा कि ह्यूमिडिटी, आज बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सब मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं अगर एक्सटर्नल कंडीशंस को मैं ध्यान में रखूंगा वाइल टेकिंग द मेजरमेंट। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें we normally place the thermometer under the armpit of the person for measuring the temperature, बट ये तरीके से टेम्परेचर थोड़ा सा कम आता है हमेशा, इसलिए टंग के नीचे रखना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये हाइजीनिक नहीं है ज्यादा, खास करके कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। तो वो तो क्या तुम्हारे इंफ्रारेड वाले थर्मोमीटर अभी यूज होता है। ठीक है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक accurate measurement with the help of proper placement of a thermometer. That is, the best position is under your tongue, in your mouth. ठीक है, another example in this category may be the measurement of potential difference between 2 points in electric circuit. अगर तुम्हें potential difference measure करना है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो थोड़ा करंट ड्रॉ करेगा। एक्चुअली करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बट वो थोड़ा थोड़ा करंट तो ड्रॉ करता ही है, और इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक मतलब ये कोई हमारी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो सिस्टमेटिक एरर जनरली अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है। ह्यूमिडिटी को तुम कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, उसमें करंट तो थोड़ा जाएगा ही, कंट्रोल नहीं कर सकते तुम। तो वो सिस्टमेटिक एरर के अंडर आता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो एरर होती है। ठीक है, हेंस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी डिफरेंट। अच्छा, एमीटर को अगर यूज करते हैं हम लोग करंट मेजर करने के लिए, तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है विच अफेक्ट्स द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, और इसलिए मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट हमेशा थोड़ा डिफरेंट आएगा एक्चुअल वैल्यू से, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर और अबाउट द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। पर्सनल एरर्स, ये बहुत सब्जेक्टिव टाइप का एरर है। सब्जेक्टिव मतलब ये डिपेंड करता है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उस पर्सन पे डिपेंड करता है। तो पर्सन केयरलेस हो सकता है। ठीक है, केयरलेस पर्सन अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो ऑब्जर्वेशन वो ठीक से नहीं लेगा। ठीक है, प्रिकॉशन नहीं लेगा ठीक से
अपैरेटस का यूज नहीं करेगा, सेट नहीं करेगा उनको प्रॉपरली, ठीक है, तो फिर एक पर्सनल एरर क्रिएट हो सकती है. So we can understand that there is endless scope for number of reason behind the personal error in the experiment. ये जरा चीज नोट कर लेना. एक बात याद रखो, ये सारे पर्सनल एरर के जो रीजन है हम इसको लिस्ट भी नहीं कर सकते. There is an endless scope for the number of reasons behind the personal errors in an experiment. While reading the position of needle on the scale of some meter, person might look at it little at a little far from left side or right side. जो स्केल को हमें बिल्कुल डायरेक्टली अबाउ द स्केल रह के आंखों से देखना चाहिए, अगर हम थोड़ा लेफ्ट से और राइट से देखें तो एरर हो जाएगी. ठीक है, तो पर्सनल एरर है क्योंकि ठीक ठीक से तुम रीडिंग नहीं ले रहे, राइट. सो देन देयर आर चांसेस फॉर एरर इन द असेसमेंट ड्यू टू पैरालैक्स. पैरालैक्स मतलब तुम्हारा जो व्यूइंग एंगल है उसमें गलती हो गई. ठीक है, सपोज यू वांट टू मेजर द टाइम पीरियड फॉर 40 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम यूजिंग सम स्टॉप वॉच, तो उसमें चांसेस है कि स्लाइट एरर हो जाएगी तुम्हारे टाइमिंग में जब तुम स्टॉप वॉच को स्टार्ट या स्टॉप करो. ठीक है, तो ये चीजों से समझ में आता है कि पर्सनल एरर हम लोग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और हम लोग जितना भी चाहे उसको अवॉइड करना, पर्सनल एरर का कुछ ना कुछ गुंजाइश तो रहेगा ही, अनअवॉइडेबल है. ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ पर्सनल एरर चेंज हो सकता है. कोई केयरफुल स्टूडेंट है वो पर्सनल एरर कम करेगा, लेकिन कुछ चीजें जैसे उसके आंखों का पावर अगर प्रॉपरली वो मेजरमेंट को नहीं देख पा रहा, ठीक है, तो फिर पर्सनल एरर अनअवॉइडेबल है, वो तो होने ही वाला है. कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, पर्सनल एरर होने ही वाला है. तो ये सारी सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आती है ये चीजें. From the given description about systematic errors, we can understand that systematic error is a kind of error whose source and outcome in the result are predictable. Hence, it is possible to minimize systematic error in the measurement, not completely eradicate. Systematic error को हम बहुत कम कर सकते हैं, eradicate नहीं कर सकते. Selection of better quality of instrument is the first step towards minimizing systematic error. यहाँ पे please इसको कुछ चीजों को नोट करेंगे मैं. Systematic error is a kind of error whose source and outcome in the result are predictable. मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये तो शायद ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है, या फिर शायद ये पर्सनल एरर की वजह से हुआ है, या फिर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हुआ है. तो इसको पॉसिबल है कि मिनिमाइज करें सिस्टमेटिक एरर्स को मेजरमेंट में. ठीक है, अगर बेटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट, तो फर्स्ट स्टेप है ये मिनिमाइज करने के लिए सिस्टमेटिक एरर को. तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को हम रिप्लेस करके, जिसको ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया है वैसे इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करके हम लोग सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू मेजर सम डायमेंशन यूजिंग वर्नियर caliper or screw gauge, then you should first check the zero error. Sometimes it is possible to remove zero error, but sometimes it is not. If it is not possible to remove zero error, then we should first note down the zero error to be adjusted later in the final result. हो गया ना, सिस्टमेटिक एरर कम हो गया क्योंकि तुम्हें पता है जीरो एरर है और तुमने उसको नोट कर लिया और फाइनल रिजल्ट से जीरो एरर को तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हारा सिस्टमेटिक एरर कम हो गया. फॉर बेटर मेजरमेंट वी नीड टू थिंक अबाउट वेज टू मिनिमाइज पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल. ये भी बहुत जरूरी. बेटर मेजरमेंट के लिए वी नीड टू think about ways to minimize personal bias as far as possible. Personal bias मतलब हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उससे ही मेजरमेंट लेते हो, so you prefer or you choose to measure with that particular instrument, but that is not very accurate instrument. It is handy to you, it is convenient for you to use that instrument, so but it is not accurate. So it is possible that you should switch your instrument to a new instrument or to other instrument which may be new, for which you may have to change your instrument, or maybe you have to do some expense on repairing your instrument, but you don't want to do it. See, this is known as personal bias. इसको भी कम करना है. ठीक है, तो तुम्हें रैशनल थिंकिंग को अडॉप्ट करना है. रैशनल थिंकिंग मतलब कोई बायस नहीं होना चाहिए, कहीं कोई साइड पे तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सही है. वो सही नहीं है. फिजिक्स में जो सही है वही सही है. कोई एक पर्टिकुलर
आदमी, टीचर, स्टूडेंट सही नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली द करेक्ट मेथड इज द करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। रैंडम एरर्स, तो पहली जो हमने एरर, पहले टाइप की एरर जो हमने पढ़ी वो सिस्टमेटिक एरर थी। उसमें इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स और पर्सनल एरर थे, ठीक है। इसको कैसे कम करना ये भी हमने देखा। रैंडम एरर्स में क्या है, जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको रैंडम एरर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर रैंडम एंड स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग। क्या तुम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर्स को ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमेशा ही रहेगा। If certain experiment is too sensitive for these parameters like fluctuations in temperature and pressure, then there will be changes and these changes will affect the measured result randomly. अगर तुम कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वोल्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस एक्सपेरिमेंट का, अगर वोल्टेज में रैंडम फ्लक्चुएशंस आए तो क्या होगा? These fluctuations will affect the experimental result. Person can also be a source of random errors in these readings. Suppose one person is assigned to note down the temperature shown by thermometer every minute, and in certain temperature sensitive process, if this is carried out, then every time the person notes down the temperature, he or she is likely to make some mistakes in the reading. Hence, person can also add random errors in the measurement, ठीक है। पर्सनल एरर की वजह से भी रैंडम एरर्स हो सकते हैं। Hence, random errors are those errors which affect the result irregularly. Irregularly मतलब हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। हो सकता है एक पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कभी केयरफुल है और फॉर अ मोमेंट वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो रैंडम एरर आ गई, क्योंकि इरेगुलर हमेशा नहीं हो रहा है, इरेगुलरली हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे एक चीज नोट करना है तुमको, रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स which affect the result irregularly in terms of sign and size. In terms of sign and size, the random errors can be reduced by taking more sets of readings of the measurement. बहुत ध्यान से इसको समझ लेना और याद रख लेना। रैंडम एरर वो होती है जो रिजल्ट को irregularly इफेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड साइज, बोथ, वन और बोथ। और रैंडम एरर को अगर रिड्यूस करना है तो एक सिंगल रीडिंग मत लो, बहुत सारे रीडिंग ले लो, और वो बहुत सारे रीडिंग का क्या ले सकते हो तुम? एवरेज, मीन, तो तुम्हारी रैंडम एरर कम रहेगी, ठीक है। द मीन ऑफ दीज रिजल्ट्स विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल रीडिंग। टू अवॉइड द रैंडम एरर्स, रिपीटेड मेजरमेंट्स और रीडिंग शुड बी टेकन। टू अवॉइड रैंडम एरर्स, रिपीटेड मेजरमेंट्स और रीडिंग शुड बी टेकन। समझ में आया रैंडम एरर के बारे में? चलो, और एक लास्ट काइंड ऑफ एरर मैं तुम्हें बता देता हूं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द smallest value of the corresponding physical quantity that can be measured by measuring instrument. For example, तुम्हारा जो स्केल है, नॉर्मल स्केल, उसका लीस्ट काउंट है 1 mm। नॉर्मल मीटर स्केल जो तुम स्केल यूज करते हो उसका लीस्ट काउंट है 1 mm। 1 mm लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि वो 1 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिविजन, ठीक है, इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट ज्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब लीस्ट काउंट कम होता है, मतलब प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर का ज्यादा है। कितना है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट? 0.1 mm। स्क्रू गेज का और प्रिसाइज है मेजरमेंट, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट और कम है, 0.01 mm, ठीक है। सो अगर कोई वैल्यू लीस्ट काउंट से भी कम है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट हम उस वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब उस वैल्यू का जो वो जो वैल्यू है वो लीस्ट काउंट से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा है उस वैल्यू से उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं मीटर स्केल का, जिसमें 1 mm लीस्ट काउंट है। क्या है लीस्ट काउंट? 1 mm। तो 1 mm लीस्ट काउंट हुआ। अब अगर मुझे 10.1 mm मेजर करना है
तो तुम्हारा जो मीटर स्केल है वो 10 mm तक तो मेजर कर सकता है, 10.1 mm मेजर नहीं कर पाए. For remaining, you cannot say anything for sure. So without guessing anything, what best you can say is the given length is between 10 mm and 11 mm. ये सबसे easily बोल सकते हो, इससे ज़्यादा accurate या precise measurement तुम नहीं दे सकते. So you can imagine the least count of an instrument is maximum possible uncertainty in the result obtained from that instrument. Thus, it can be said that least count error can be minimized by using an instrument with higher resolution or smaller value of least count. अगर least count error को measure करना है तो least count कम रखो, precision ज़्यादा रखो, ठीक है, तो least count error कम रहेगी. Error analysis. अब हम error analysis पे आ गए. ये error कौन से टाइप की होती है ये तो हमने पढ़ लिया, एरर कब होती है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, और प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, जिसको ज़्यादा रखने से, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को ज़्यादा रखने से एरर कम हो सकती है, ये भी हमने पढ़ लिया. लेकिन एरर होगी तो ज़रूर, और ये एरर को एनालाइज करना, कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. तो एरर के एनालिसिस के लिए एरर के टाइप्स भी पता होनी चाहिए. तो हम जो पढ़ने वाले एरर के टाइप्स अभी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. To obtain the best possible result from an experiment, we often repeat the same experiment several times. ऐसा क्यों करते हैं? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है. तो अगर हो सकता है कि हम एक पर्टिकुलर रीडिंग ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, और वो मेजरमेंट के हमें बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, n वैल्यूज, x1 x2 x3 अप टू xn, n टाइम्स हमने वो मेजरमेंट को रिपीट किया. मेजरमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, ठीक है. तो अगर हमें बेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो हम क्या ले लेंगे पता है? एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज विल गिव अस द बेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल एंटिटी और क्वांटिटी अंडर गिवन कंडीशंस. तो एवरेज या मीन, एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये तो पढ़ा है ना तुमने 9th में और 10th में, मीन, ठीक है. तो एक्स मीन ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है. इस सेम फॉर्मूला का मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है? एक्स मीन या मीन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, ये क्या है पता है? सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है समेशन. समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. मैं कैसे बोल रहा हूं इसको समझो. समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टिल nth ऑब्जर्वेशन, I1 IN, मतलब फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टिल nth ऑब्जर्वेशन अपॉन n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. We can now treat x mean as the true value. अब ये जो मीन ऑब्जर्वेशन है इसको ट्रू वैल्यू हम मान सकते हैं, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर फॉर दैट मेजरमेंट. तो हम क्या करेंगे पता है? अभी हम निकाल लेंगे डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn, अप टू डेल्टा xn. इसका क्या मतलब है? ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. और ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है. इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू अब तुम्हारी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान चुके हैं, ठीक है. तो मीन वैल्यू, मीन मेजरमेंट को अगर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर्ड वैल्यू से अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर. अब तुम देख रहे हो यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन है. ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है मॉड या फिर मॉड्यूलस. जब भी याद रखो कोई भी वैल्यू ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखी जाती है उसको बोलते हैं मॉड वैल्यू. क्या बोलते हैं? मॉड वैल्यू. मॉड का मतलब है मॉड्यूलस. ये जो मॉड्यूलस की साइन है दो वर्टिकल लाइंस, उसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, उसका फाइनल जो फॉर्म है वो पॉजिटिव हो जाता है. मतलब अंदर नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डालोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. मॉड का मतलब है वो किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है. तो हमने ये मॉड क्यों डाला है? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है? हमेशा
पॉजिटिव ही रहता है फॉर द मेजरमेंट। एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट कैन बी रिटन एज फॉलोज। ये उसका तरीका है एब्सोल्यूट एरर्स को लिखने का, ठीक है। नोट दैट डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट फ्रॉम मीन वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नोट करो तुम। Difference of individual measurement from the mean value may be positive or negative because mean value is somewhere in between or in middle of those values, but absolute error is always taken as positive. Absolute error को हमेशा positive लेना है। ये जो एब्सोल्यूट एरर है मतलब x1 माइनस एक्स मीन, x2 माइनस एक्स मीन, xn माइनस एक्स मीन, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमेशा इसका मॉड ले लेना है, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। Hence, just the magnitude of difference of individual measurement with the mean or true value of the physical quantity has to be taken, and that is known as you can say the absolute value. The arithmetic mean, अब ये याद रखो, arithmetic mean of all these absolute errors is called mean absolute error. ये सारे absolute error दिख रहे हैं तुम्हें? Mod of delta x1, mod of delta x2, mod of delta x3 plus up to mod of delta xn divided by n, ये सारे एब्सोल्यूट एरर का जब मैं मीन निकालूंगा तो मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो है summation of all the absolute errors from the first absolute error till the nth absolute error upon total number of absolute error। तो इससे मिलेगा मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटन एज एक्स मीन। एक्स मीन क्या था? एक्स मीन था x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn डिवाइडेड बाय n प्लस माइनस एक्स मीन, एक्स डेल्टा एक्स मीन, आई एम सॉरी, डेल्टा एक्स मीन क्या था? डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन था mod of delta x1 plus mod of delta x2 plus up to mod of delta xn the whole divided by n। मतलब मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू में से हमें क्या करना है? प्लस माइनस लिख के सारे टोटल जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको माइनस करना है। मीन वैल्यू में से मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस या प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। नाउ अभी ये बात भी इसको दिमाग में डालो। इफ x इज सम मेजर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी देन इट विल लाई इन द इंटरवल एज फॉलोज। अगर x मीन प्लस x डेल्टा x मीन निकाला, मतलब मीन वैल्यू और डेल्टा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू को हमने ऐड किया, तो हमेशा जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है वो इससे कम ही होगा या स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। लेकिन अगर तुमने तुम्हारी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट एरर को माइनस किया, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू को माइनस किया, तो तुम्हारी ट्रू वैल्यू, तुम्हारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा इससे, ये जो डिफरेंस है उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मीन इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, बट समटाइम्स वी राइट एरर एज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो यहां पे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा हम क्वेश्चन में हमें पूछते नहीं है। क्वेश्चन में दे विल टेल यू, दे विल आस्क यू टू फाइंड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो पहले देखो रिलेटिव एरर क्या है। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to that with mean value of the measured quantity, measured physical quantity is called relative error or fractional error। तो relative error क्या है? delta x mean, delta x mean क्या था? delta x mean is mean absolute error divided by mean mean value या फिर true value of the measurement, mean absolute error upon mean value, ठीक है। ये होता है रिलेटिव एरर, ये हमेशा फ्रैक्शन या परसेंटेज में होता है। व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो सिर्फ हमें ये रिलेटिव एरर के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पूरा जो एरर है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एरर का परसेंटेज या फ्रैक्शन की वैल्यू जितना कम, उतना
ये जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया तुम्हें, सारे फॉर्मूले यहाँ पे इस बॉक्स में दिए हुए हैं, इसको तुम्हें नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला है मीन, इसको एक्स मीन हम लोग बोलते हैं। इसका जो एक्चुअल नाम है दैट इज ट्रू वैल्यू। एक्स मीन को हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, एक्स मीन या फिर ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स मीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। एक्स मीन भी बोलो, ट्रू वैल्यू भी बोलो, दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, एक्स मीन के बाद क्या पढ़ा हमने, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर अकेला कोई काम का नहीं है, तो हमने एब्सोल्यूट एरर से क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा मतलब एरर के लिए है डेल्टा। ठीक है, डिफरेंस मतलब एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू डेल्टा एक्स मीन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शनल एरर था जो है ट्रू वैल्यू अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर, नो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर था दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूले ये सारे तुम्हारे सामने हैं। अब हम लोग सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर, चलो ये वाला फर्स्ट ट्राई करते हैं। Diameter of a wire measured in an experiment was 0.022 centimeter, 0.023 centimeter। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है। तुम्हें क्या ढूंढना है, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो मीन क्या होता है, देखो मीन इज एक्स मीन। ठीक है, एक्स मीन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन अपॉन एन, ये तुम्हारा एक्स मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्स मीन हमारे केस में क्या हो जाएगा, 0.022 प्लस 0.023 प्लस, सबको प्लस करना है, कहां तक, लास्ट वाला कौन सा है, 0.025। ठीक है, ये एक ज्यादा एडिशन मैंने साइन डाल दिया। ठीक है, कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो निकालते हैं अभी। 0.022 प्लस 0.023 प्लस 0.026 प्लस 0.025 प्लस 0.024 प्लस 0.025 इन दी एंड। ठीक है, तो इनको ऐड करने से मुझे मिला 0.145 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, 0.02416। अच्छा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.024 ही आता है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ये सब भी आना बाकी है, तो वो भी हम सीखेंगे। बट पहले मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास सारे मेजरमेंट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैंने मीन भी, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर भी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस ही लिखा है। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू आ गया। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, अच्छा एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट क्या होता है, तो डेल्टा x1, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, और इसका वैल्यू क्या है, x1 माइनस एक्स मीन, मॉड ऑफ x1 माइनस एक्स मीन। x1 क्या है, 0.022 माइनस एक्स मीन क्या है, 0.024। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 0.002, माइनस 0.002, सही है, which will be 0.002। so this is mod of डेल्टा x1। वैसे ही तुम निकाल सकते हो mod of डेल्टा x2, mod of डेल्टा
x3, चलो सारे निकाल देते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरे सामने यहाँ पे सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं ईच मेजरमेंट के, ठीक है। अब इफ आई वांट टू फाइंड द परसेंटेज एरर, इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। याद है ना, मैंने बताया था यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स mod of delta x1 प्लस mod of delta x2, ठीक है, प्लस अप टू mod of delta x6 अपॉन 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.002 प्लस 0.001 प्लस 0.002 प्लस 0.001 प्लस ये 0 तो मैं लिखूंगा नहीं, 0.001 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 0.007 डिवाइडेड बाय 6, देखते हैं कितना आता है। 0.007 डिवाइडेड बाय 6, 0.0012, ठीक है, 0.0012 करेक्ट। अप टू 4 डेसिमल प्लेस लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग मोर एक्यूरेट, ठीक है। चलो, डेल्टा एक्स मीन आ गया। अब परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स मीन अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ही बोलते हैं ना इसको, यस, एक्स मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा एक्स मीन है 0.0012 अपॉन एक्स मीन है 0.024 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर हम लोग ये 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 0.12 अपॉन 0.024, ठीक है। अगर 3 डेसिमल प्लेस हटाते हैं नीचे से तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ 5%। सो परसेंटेज एरर 5% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। लेट्स सी अपना आंसर कितना करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या था अपना? द मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर कितना आया था? 0.024, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड आंसर क्या था अपना? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर 12101, हाँ 2 था ना पहले, 212101, 212, ये लोग ने मॉड नहीं लिया है, अजीब है, मॉड क्यों नहीं लिया है? 101, अच्छा राउंड ऑफ करके, अच्छा इनका 4% आ रहा है, राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें नहीं पता था कि 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, तो हमने क्या किया, 0.0012 को 0.0012 ही रहने दिया। ये लोग ने उसको 0.001 बना दिया है, इसके लिए उनका 4% आ रहा है, ठीक है। तो राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एक नया चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं, बट अपना मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे होमवर्क में, तो रिमेंबर टू राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है, उसके बाद वाली 2 सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। तो मैंने इसको रहने दिया था, इन्होंने इसको नहीं रहने दिया, तो इसलिए हमारा एरर थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। सो बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, अपना मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख, शायद मैं तुम्हें करने के लिए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास म्यू। अब म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तुमने 10th में पढ़ा हुआ है ये,
इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इट वॉज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एंड वॉज फाउंड टू बी 1.655, ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ म्यू, मीन निकाल सकते हो तुम, ठीक है, ये तुम करोगे, मीन तुम निकालोगे। मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये भी तुम्हें निकाला, याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा एक्स मीन, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस अप टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स सिक्स, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाई 6, तो तुम्हें मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अच्छा, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स मीन। एक्स मीन तुम्हें ऑलरेडी यहां से मिल चुका है फर्स्ट से, ठीक है, तो ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज भी तुम्हें मिल जाएगी और उससे एक्स मीन मिल जाएगा, तो ये सेकंड वाला भी तुम कर लो। अब भी करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो दैट इज योर वर्क फॉर टुडे। आज मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ नोट्स लेनी है और ये क्वेश्चंस जो सॉल्व एग्जांपल जो इजी वाले वो तुम्हें करना है। अच्छा, रिलेटिव एरर ढूंढना है, तो रिलेटिव एरर क्या है, फॉर्मूला बता देता हूँ। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जिसको बोलते हैं, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एक्स डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो जाएगा ये। अभी वीडियो को पॉज करो और प्लीज ये सॉल्व कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिए तो कुछ काम पे लगाओ उसको, ठीक है। चलो, I hope you are done. You paused the video, you solved it. Let's check the answer. The first answer is this. Rounded off to 4 significant figures. 4 significant figures मतलब 1 2 3 4, तो ये जो फोर्थ प्लेस है उसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर 4 सिग्निफिकेंट। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है? देखो, इसमें बहुत ही एक मैं तुम्हें चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हारा जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितनी फिगर दिख रही है तुम्हें? 1 2 3 4, तो तुम्हारे आंसर में भी 4 फिगर रखना है, ठीक है। ये एक्चुअली गलती मैंने पहले भी की थी। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही है तुम्हें? 4, तो यहाँ पे भी 4 ही होनी चाहिए, इसलिए वो लोग ने राउंड ऑफ किया, तो उनका मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, यस, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स तुम्हें आ गया, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर ये आती है राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर रिलेटिव एरर ढूंढा है और परसेंटेज एरर ढूंढा है, ठीक है। प्लीज चेक कर लो अपने आंसर्स। डन। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अब ये वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ये पार्ट, एरर वाला पार्ट काफी लंबा है, हो सकता है इसमें मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊं, ठीक है। एक वीडियो तो आज हो गया, और एक या फिर और 2 वीडियोस आएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगा। तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? आज होमवर्क में तुम्हें ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल जो भी एक एक शायद वो तुम्हें करना है और नोट्स लेनी है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ कमेंट्स भी पास करो, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स मत पास करना, पास करना मतलब लिखना है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कमेंट्स, क्लासरूम थोड़ी है कमेंट्स पास करना है। कमेंट लिखो कुछ, आई अंडरस्टूड द वीडियो, थैंक यू सर, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें जो लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बाय, सी यू लेटर, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।